Hello students, good morning. Welcome to SAS Online Classes. Students, we were reading chapter 3 Olympic Rainy of our English literature book as we sister. And students, we have read this chapter and we have explained summary first to 9 stanzas of this chapter 3 Olympic Rainy, and we have also read and note down 8-line poem, and we have also read and note down 1 to 20 hard words, and last we have also read and note down first to 7 word meaning of this chapter 3 Olympic Rainy in our fair English literature notebook in our last classes. So students, we have completed all this work in our last classes, and since today's our topic is exercise A, answer these questions of this chapter 3 Olympic Rainy, which is on page number 30. So since today we will solve exercise A, answer these questions of this chapter 3 Olympic Rainy in our fair English literature notebook in our 2 days class. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Let's see exercise A. Your chapter number is chapter 3 and the name of this chapter 3 is Olympic Rainy. Okay, let's see exercise A. Exercise A is answer these questions. Answer means उत्तर दीजिए. This means here questions means प्रश्न. Okay, answer these questions, it's mean in प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, let's say first number question of this chapter 3. Okay, your question number first is, in this year which games did grandma participate in? It's mean in this year. इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, ईयर मीन्स वर्ष या साल, इन दिस ईयर इट्स मीन इस वर्ष में, इस साल में. विच गेम्स मीन्स कौन से गेम्स, कौन से खेल. डिड इट्स योर पास्ट इंडिपेंडेंट हेल्पिंग वर्क. ओके, ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, इन मीन्स में. ओके, इन दिस ईयर विच गेम्स डिड ग्रैंडमा पार्टिसिपेट इन. इट्स मीन इस वर्ष में दादी माँ ने किन खेलों में भाग लिया था. ओके, इन दिस ईयर विच गेम्स डिड ग्रैंडमा पार्टिसिपेट इन. इट्स मीन इस वर्ष दादी माँ ने किन खेलों में भाग लिया था. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी आंसर नंबर फर्स्ट. योर आंसर नंबर फर्स्ट इज टेबल टेनिस, वेट्स लिफ्टिंग, साइकिलिंग, हाई जंप, hammer throwing, marathon, boxing and basketball and wrestling. Okay, so students, the game name which your grandma participate in. ओके, जो गेम्स के नेम है जिनमें दादी माँ ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, वो गेम्स नेम क्या है स्टूडेंट? टेबल टेनिस, वेट्स लिफ्टिंग, ओके, साइकिलिंग, हाई जंप, हैमर थ्रोइंग and marathon. Here the meaning of marathon, that long races. Okay, boxing and basketball and wrestling. Okay, तो स्टूडेंट्स जो गेम्स थे ना जिनमें दादी माँ ने पार्टिसिपेट किया था इन दिस ईयर, इस वर्ष, वो गेम्स नेम क्या थे? टेबल टेनिस, वेट्स लिफ्टिंग, साइकिलिंग, हाई जंप, हैमर throwing, marathons, boxing and basketball and wrestling. Okay, let's see question number second. Your question number second is, how will grandma make her competitor feel at the Olympics games? Okay, how means कैसे will, it's your future helping verb, future tense helping verb है. grandma means दादी माँ, make means बनाना. ओके, हर मीन्स अपने कॉम्पिटर्स मीन्स प्रतिद्वंदी या प्रतियोगी. ओके, फील मीन्स अनुभव, एट दी ओलंपिक मीन्स ओलंपिक गेम्स मीन्स खेल. ओके, हाउ विल ग्रैंडमा मेक हर कॉम्पिटर्स विल फील. ओके, आई रीड अगेन, how will grandma make her competitors feel at the Olympic games? Okay, it's mean कि दादी माँ अपने प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी को कैसा अनुभव कराना चाहती थी ओलंपिक गेम्स पर. ओके, ओलंपिक गेम्स पर, ओलंपिक खेलों पर दादी माँ अपने प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी को कैसा फील कराएगी, कैसा अनुभव कराएगी. ओके, so your second number answer is, grandma will laugh at her competitors and make them shake with fear at the Olympics game. Okay, तो grandma means grandma, will it's a future tense helping verb, laugh means हंसना, at her competitors means अपने प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी पर, and means और make them means उन्हें बनाना. ओके, शेक मीन्स होता है कपकपाना. ओके, विथ तो मीन्स साथ में, फियर मीन्स डर के, एट दी ओलंपिक गेम्स मीन्स ओलंपिक खेलों पे. ओके, योर सेकेंड नंबर आंसर इज, ग्रैंडमा विल लाफ एट हर कॉम्पिटिटर्स एंड मेक देम शेक विथ फियर एट दी ओलंपिक्स गेम्स. इट्स मीन दादी माँ ओलंपिक खेलों में अपने प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी पर हंसेगी और उन्हें डर के मारे मतलब उन्हें इतना डराएगी कि वो डर के मारे कपाएंगे. ओके, इट्स मीन कि दादी माँ ओलंपिक खेलों पर अपने कॉम्पिटर्स पर, अपनी प्रतियोगी प्रतिद्वंदी पर हंसेगी और उन्हें मतलब ऐसा बनाएगी कि वे फियर के मारे सेक करेंगे. इट्स मीन डर के मारे कपाएंगे. ओके, सेक मीन्स होते कपाना. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज ग्रैंडमा एज. ओके, व्हाट मीन्स क्या? इट मीन्स है ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ की, एज मीन्स एज, उम्र. ओके, व्हाट इज ग्रैंडमा एज, दादी माँ की उम्र क्या है?
वॉट ट्रबल डज सी फेस, वॉट मीन्स क्या, ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, परेशानी, डज इट्स सो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हेल्पिंग फॉर इन सिंगुलर फॉर्म, सी मीन्स वह, फेस मीन्स सामना करना, वॉट ट्रबल डज सी फेस, वह कौन सी परेशानी का सामना करती है, ओके, कौन सी मुसीबत का सामना करती है, ओके, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका वो सामना करती है, ओके. सो स्टूडेंट, वी हैव रीड दिस chapter, we have read this poem Olympic Rainy, and we know that grandma is 99 years old, okay. So student, your third number answer is grandma is 99 years old, दादी माँ 99 ईयर्स ओल्ड की है, दादी माँ 99 साल की है, ओके. द ट्रबल इज़ दैट सी कांट डिसाइड विच स्पॉट सी प्लेज द बेस्ट. द ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, समस्या या कठिनाई, ओके, या परेशानी. इट मीन्स है, दैट मीन्स की, सी मीन्स वह, कांट मीन्स नहीं सकती, डिसाइड मीन्स डिसाइड करना, निर्णय करना, विच मीन्स जो, स्पॉट मीन्स खेल, सी मीन्स वह, प्लेस मीन्स खेलती है, दी बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, बेस्ट इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे थोड़ा अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा अच्छा, ओके. तो स्टूडेंट, योर आंसर इज़ ग्रैंडमा इज़ 99 ईयर्स ओल्ड, दादी माँ 99 साल की है, दादी माँ की एज 99 है, 99 है. द ट्रबल इज़ दैट सी कांट डिसाइड विच स्पॉट सी प्लेस दी बेस्ट. इट्स मीन परेशानी है कि वह निर्णय नहीं कर सकती है, ओके, कि वह कौन सा गेम, कौन सा स्पोर्ट, कौन सा खेल वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है, ओके. क्योंकि स्टूडेंट, वी हैव रीड दिस चैप्टर एंड वी नो दैट कि जो ग्रैंडमा है 99 ईयर्स ओल्ड के होने के बाद भी बहुत सारे गेम्स, वो चाहे रेसलिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे फिर वेट लिफ्टिंग हो, सारे गेम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्ले करती है, ओके. चाहे हैमर थ्रोइंग हो, मैराथन्स हो, बॉक्सिंग हो, बास्केटबॉल हो, ओके, टेबल टेनिस हो, हाई जंप हो, 99 ईयर ओल्ड होने के बाद भी सारे गेम्स बहुत अच्छे से प्ले करती है, ओके. तो वो ये डिसाइड नहीं कर सकती, ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो कौन सा गेम सबसे ज़्यादा अच्छा प्ले करती है, ओके. जब भी वो ये थिंक करती है ना कि अच्छा मैं सबसे ज़्यादा अच्छा गेम कौन सा प्ले करती हूँ, चलो आज डिसाइड करती हूँ, तो वो नहीं डिसाइड कर पाती, क्यों, क्योंकि सारी गेम वो बहुत अच्छे से प्ले करती है ना. तो स्टूडेंट, योर थर्ड नंबर आंसर इज ग्रैंडमा इज़ 99 ईयर्स ओल्ड, दादी माँ 99 साल की है, 99 साल की है, ओके. उनकी एज 99 है, 1/100, ओके. द ट्रबल इज़ दैट सी कांट डिसाइड विच स्पॉट सी प्लेज दी बेस्ट, ओके. उनकी परेशानी है कि वो निर्णय नहीं कर सकती है कि वो कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती हैं, क्लियर. लेट्स सी 4 नंबर क्वेश्चन. योर 4 नंबर क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द स्पोर्ट्स दैट ग्रैंडमा इज गुड एट, ओके. लिस्ट ऑल द स्पोर्ट्स दैट ग्रैंडमा इज गुड एट, ओके. लिस्ट मीन्स सूची, ऑल द स्पोर्ट्स मीन्स सभी खेलों की, दैट मीन्स जो, ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ, इट मीन्स है गुड, मीन्स गुड एट मीन्स अच्छी, ओके. इट्स मीन कि लिस्ट ऑल द स्पोर्ट्स दैट ग्रैंडमा इज गुड एट, इट्स मीन कि सूची, सभी खेलों की सूची जो दादी माँ सबसे ज़्यादा अच्छी खेलती, ओके. तो आपको एक लिस्ट में करनी है उन स्पोर्ट्स की जो दादी माँ सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है. लिस्ट ऑल द स्पोर्ट्स दैट ग्रैंडमा इज़ गुड एट. तो दादी माँ के द्वारा खेले जाने वाले सभी अच्छे खेलों की सूची बनाना है, ओके. सो लेट्स सी योर फॉर नंबर आंसर इज वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, हाई जंप, हैमर थ्रोइंग, मैराथन्स, बॉक्सिंग एंड बास्केटबॉल, ओके. एंड इट्स अ लिस्ट ऑल द स्पोर्ट्स दैट ग्रैंडमा इज गुड एट, ओके. ये लिस्ट है, किसकी लिस्ट है स्टूडेंट्स, ये उसकी लिस्ट है जो उन स्पोर्ट्स की लिस्ट है जो दादी माँ बहुत अच्छे से प्ले करती है, बहुत अच्छे से खेलती है, उन स्पोर्ट्स नेम की लिस्ट है, ओके. तो आपका 4 नंबर आंसर है द लिस्ट ऑल द स्पोर्ट्स दैट ग्रैंडमा इज गुड एट आर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, साइकिलिंग, हाई जंप, हैमर थ्रोइंग, मैराथन्स, द मीन ऑफ मैराथन्स इज लॉन्ग रेसेस, ओके, बॉक्सिंग एंड बास्केटबॉल, क्लियर. तो स्टूडेंट, ये सारे गेम्स थे जिसमें दादी माँ बहुत अच्छी थी, दादी माँ बहुत अच्छे से इन गेम्स को प्ले करती थी, क्लियर. Look at this question number 5, which is last question of this exercise A, okay. And let's see your exercise का last question है exercise A का question number 5, and the question number 5 is what according to the speaker it's shocking, okay. what means क्या, according means के अनुसार, okay. speaker means वक्ता, बोलने वाला, okay. speak means होता है बोलना, and speaker means बोलने वाला, okay. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम अ स्पीकर, ओके, बिकॉज आई एम स्पीकिंग. अभी मैं एक स्पीकर हूँ, मैं एक वक्ता हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, एंड यू आर अ लिसनर, आप एक श्रोता हैं बिकॉज यू आर लिसनिंग, क्योंकि आप सुन रहे हैं ना. तो स्पीकर मीन्स स्टूडेंट होता है बोलने वाला, वक्ता. तो व्हाट मीन्स क्या, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, इट्स मीन वक्ता के अनुसार, बोलने वाले के अनुसार, ओके. इट्स शॉकिंग, इट्स मीन शॉकिंग मीन्स आश्चर्यजनक, हैरान कर देना, और देने वाला, ओके. तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इट्स शॉकिंग, इट्स मीन वक्ता के अनुसार, पोइट के अनुसार आश्चर्यचकित कर देने वाला, हैरान कर देने वाली बात क्या है, ओके. क्या चीज़ ऐसी है जो हैरान कर देती, ओके.
तो स्टूडेंट्स योर 5 number answer is according to the speaker it is shocking that she wins all contest with her wheelchair and her walker. Okay, तो अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इट्स मीन वक्ता के अनुसार, पोइट के अनुसार, ओके, बोलने वाले के अनुसार इट इज़ शॉकिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाला यह है, हैरान कर देने वाली बात यह है, दैट मीन्स कि सी मीन्स वह, विंस मीन जीतती हैं, ओके, ऑल मीन्स सभी, कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, ओके, विथ साथ में हर मीन्स अपने, व्हील चेयर मीन्स चार पहियों वाली कुर्सी, एंड मीन्स और हर वॉकर, ओके। स्टूडेंट हियर द मीन ऑफ वॉकर, वॉकर मीन्स स्टूडेंट होता है जैसे कुछ जो पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो एक स्टिक के थ्रू एक, इट्स मीन एक स्टिक होती है वुडन की, ओके, एक वुडन स्टिक होती है, लकड़ी की स्टिक होती है, लकड़ी की छड़ होती है, उसके सहारे चलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं वॉकर, ओके। जब कोई पर्सन बहुत ओल्ड होता है, बहुत बूढ़ा होता है और वो सही से वॉक नहीं कर सकता है, तो वो एक स्टिक के थ्रू चलता है, उसे बोलते हैं वॉकर, ओके। व्हील चेयर मीन्स होता है पहियों वाली कुर्सी, ओके, चार पहियों वाली कुर्सी होता है, ओके। तो योर 5th number आंसर इज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इट्स अ शॉकिंग दैट सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट विथ हर व्हील चेयर एंड हर वॉक, ओके। तो वक्ता के अनुसार, पोइट के अनुसार हैरान कर देने वाली बात, आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ यह थी कि जो ग्रैंड माँ थी ना, तो उन्होंने सारी कॉन्टेस्ट, सारी प्रतियोगिताएं अपनी व्हील चेयर और वॉकर के साथ जीती थी। इट्स मीन कि वो इतनी 99 ईयर्स ओल्ड की थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि वो व्हील चेयर और वॉकर के थ्रू मतलब वॉक करती थी। व्हील चेयर और वॉकर की उन्हें हेल्प लेनी पड़ती थी, ओके, वॉक करने के लिए, चलने के लिए, और अपने व्हील चेयर और वॉकर के साथ में उन्होंने ये सारे कॉन्टेस्ट विन किए। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि एक 99 ईयर्स ओल्ड की लेडी व्हील चेयर और वॉकर के साथ ये सारे कॉन्टेस्ट विन कर सकती है, ओके। So student, I have explained you all questions of this exercise A, and I hope you must have understood all these questions of this exercise A of this chapter 3 Olympic and you have no problem in any question. Okay, now we are going to read and solve this exercise B. Okay, your exercise B is answer these questions with reference to the contest. Okay, answer means उत्तर दीजिए, this means ये, questions means प्रश्नों के, with reference means संदर्भ के साथ, to the context means context. Okay, answer these questions with reference to the context. Okay, तो context reference के साथ, संदर्भ के साथ, context की प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, your first number context is the trouble it she can't decide which sport she plays the best. Okay, the trouble means problem, परेशानी, it means है, she means वह, okay, can't means नहीं सकती है, decide means निर्णय, which means risky, okay, sport means खेलना, she means वह, place means खेलती है, the best means सबसे अच्छा. the trouble it she can't decide which sport she plays the best, it mean कि परेशानी यह थी कि वह निर्णय नहीं कर सकती थी कि कौन सा स्पॉट, कौन सा खेल वो सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है. ओके, so since it's your contest, now we are going to, let's see our first number question. Okay, now we are going to solve our A number question of this exercise B, okay, of this giving first number contest. Okay, let's see your question number first is who it see in these lines. Okay, who means कौन, it means है see, SATC, it means में these lines means in line में. Okay, who it see in these lines, इन पंक्तियों में see कौन है. Okay, ये जो lines है ना, the trouble it see can't decide which spot see plays the best, है ना, तो ये जो see है किसके लिए यूज़ किया गया, ये see कौन है यहाँ पे. Okay, तो स्टूडेंट who it see in these line, इन पंक्तियों में see कौन है. Okay, student we have read this poem and we know that C is grandma in this line. Okay, ये जो lines है ना, इसमें C कौन है, grandma है ना, तो grandma के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ था ना कि trouble it she can't decide which sport she plays the best. इट्स मीन उनके प्रॉब्लम ये थी, उनकी परेशानी ये थी कि वो नहीं डिसाइड कर सकती थी, नहीं निर्णय कर सकती थी कि उनका सबसे अच्छा गेम मतलब कौन सा प्ले करती, कौन सा स्पोर्ट वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्ले करती है ना. तो सी का यहाँ का जो सी है ना, हियर वी यूज सी फॉर ग्रैंडमा, ग्रैंडमा के लिए सी यूज़ किया था ना. तो स्टूडेंट योर इन आंसर इज सी इज ग्रैंडमा इन दीज लाइन्स. सी मीन्स वह, इज मीन्स है, ग्रैंडमा मीन्स दादी माँ, इन मीन्स में, दिस मीन्स इन, लाइन्स मीन्स पंक्तियों में. सी इज ग्रैंडमा इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में सी कौन है, ग्रैंडमा है, दादी माँ. सी किसके लिए यूज़ किया गया, ग्रैंडमा के लिए यूज़ किया गया, दादी माँ के लिए यूज़ किया गया. क्लियर. योर क्वेश्चन नंबर बी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी. योर क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज द ट्रबल. व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है, द ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, परेशानी. ओके, व्हाट इज द ट्रबल, इट्स मीन परेशानी क्या है. ओके, सो स्टूडेंट योर आंसर नंबर बी ऑफ दिस क्वेश्चन बी is the trouble is that she can't decide which sport she plays the best. Okay, the trouble means problem, परेशानी, it means है, that means कि she means वह, can't means नहीं सकती, decide means निर्णय, which means
कौन सा स्पॉट मीन्स गेम, ओके, स्पॉट मीन्स खेल, सी मीन्स वह प्लेस मीन्स खेलती है, दी बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, दी ट्रबल इज दैट सी कान डिसाइड विच स्पॉट सी प्लेस दी बेस्ट, ओके। तो परेशानी यह है कि वह निर्णय नहीं कर सकती कि वे कौन सा स्पॉट, कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती हैं, क्लियर, यही उनकी ट्रबल है। बिकॉज वो सारी गेम्स बहुत अच्छे से खेलती थी, वो चाहे विस्लिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, साइकिलिंग हो, ओके, टेबल टेनिस हो, कोई भी गेम हो, सारी गेम्स बहुत अच्छे से खेलती थी, इतने अच्छे से खेलती थी ना कि वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाती थी कि कौन सा गेम वो सबसे ज़्यादा अच्छा प्ले करती, ओके। तो दी ट्रबल इज़ दैट सी कांट डिसाइड विच स्पॉट सी प्लेस दी बेस्ट। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी, परेशानी यह है कि वह निर्णय नहीं कर सकती कि वो कौन सा स्पॉट, कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा खेलती है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर सी इज, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सी, ओके। योर क्वेश्चन number C is what she good at sports, okay, was she good at sports, it's mean कि वह स्पोर्ट्स में क्या अच्छी थी, ओके। व्हाट सी गुड एट स्पोर्ट्स, क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी, क्या वो खेल में अच्छी थी, ओके। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, ओके। इट्स मीन कि व्हाट सी गुड एट स्पोर्ट्स, वाई और वाई नॉट, इट्स मीन क्वेश्चन नंबर सी आस्क यू दैट कि क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी, क्या वो खेल में अच्छी थी, और अगर अच्छी थी तो क्यों थी, और अगर अच्छी नहीं थी तो क्यों नहीं थी। इफ़ सी वॉज गुड एट स्पोर्ट देन वाई, अगर वो स्पोर्ट में अच्छी थी तो क्यों अच्छी थी, एंड इफ़ सी वाज नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, अगर वो स्पोर्ट में खेल में अच्छी नहीं थी तो वाई नॉट, क्यों नहीं अच्छी थी, ओके। योर सी नंबर आंसर इज सी वाज गुड एट स्पोर्ट बिकॉज सी मीन्स ऑल कॉन्टेस्ट, ओके। सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, वाज इट्स अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब, ओके। गुड मीन्स अच्छी, एट स्पोर्ट्स मीन्स खेलों पर, ओके, खेलों में, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सी मीन्स वह, विंस मीन्स जीतती थी, ओके। विंस मीन्स जीतना, ओके, जीतती थी, ऑल मीन्स सभी, कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, ओके। तो स्टूडेंट योर सी नंबर आंसर इज सी वाज गुड एट स्पोर्ट्स बिकॉज सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट, ओके। तो वह स्पोर्ट्स में, वह खेलों में अच्छी थी क्योंकि वह सारे कॉन्टेस्ट, सारी प्रतियोगिताएं जीतती थी, ओके। तो स्टूडेंट्स चूँकि सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट, ओके, क्योंकि वह सारी कॉन्टेस्ट जीतती थी, सारी प्रतियोगिताओं को विन करती थी, सारी प्रतियोगिताओं को जीतती थी, ओके। तभी हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी, ओके। सी वाज गुड, ओके, एट स्पोर्ट, वो खेल में अच्छी थी क्योंकि वो सारे कॉन्टेस्ट को जीतती थी, ओके। एंड इफ़ she does not win all contests then we can't say that she was good at sport, okay। अगर वो सारे कॉन्टेस्ट नहीं जीतती, ओके, अगर वो ओनली वन कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती, एक भी कॉन्टेस्ट नहीं जीतती, एक भी प्रतियोगिता नहीं जीतती, तो हम नहीं कह सकते थे कि वो स्पोर्ट में अच्छी थी, ओके, कि वो खेल में अच्छी थी, क्लियर। तो योर आंसर नंबर सी वाज गुड एट स्पोर्ट बिकॉज सी विंस ऑल कॉन्टेस्ट। तो वो स्पोर्ट्स में, वो खेलों में अच्छी थी क्योंकि वो सारे कॉन्टेस्ट विन करती थी, सारी प्रतियोगिताओं को जीतती थी, क्लियर। Just and I've explained you all questions of this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in this exercise B, okay. So then today's our topic has finished. We have completed exercise A and exercise B and in our today's class, and I hope you must have understood both exercise A and exercise B. You have no problem in any question, okay. So then today's classwork is that note down exercise A and exercise B first of this chapter 3 Olympic Granny in your Fair English Literature notebook. It's a today's classwork, and then your homework is that learn exercise A and exercise B first of this chapter 3 Olympic Granny from your Fair English Literature notebook. It's a today's homework. So students, your class 1 homework is clear ना। आपका स्टूडेंट क्लास वर्क है कि आपको ये एक्सरसाइज ए आंसर दिस क्वेश्चंस, और ये जो एक्सरसाइज बी है, एक्सरसाइज बी का जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट हमने आज सॉल्व किया है, ABC क्वेश्चन आंसर, ये आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करना है एज इट इज़, ओके। फर्स्टली मेंशन CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, देन मेंशन हेडिंग, आंसर दिस क्वेश्चन, एंड लास्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर विथ योर बेस्ट हैंड राइटिंग, ओके। उसके बाद आपको सबसे अच्छी हैंड राइटिंग में आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करनी है, आपका क्लास वर्क है। एंड स्टूडेंट योर होमवर्क इज दैट लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक। अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करनी है, आज आपका होमवर्क है, क्लियर। So students, firstly complete your classwork, note down exercise A, answer this question, and exercise B, answer these questions with reference to the context of this chapter 3 Olympic Granny in your Fair English Literature notebook, and send me your work here. Thank you.